and welcome. So we have today with us super talented rapper and music producer from Chandigarh, Rob C. So welcome you, sir. Thank you so much. Thank you. From your original name to Rob C, ये कैसे आया? Like tell us your original name and the reason behind Rob C. So basically जो मेरा real name है वो है कामेश चावला and Rob C ऐसे बना कि जो मेरा nickname है that's Robin. Okay. घर पे सब प्यार से Robin बुलाते हैं. तो Rob is derived from Robin and C stands for my surname that's Chawla. तो Rob C वो automatically ही एक stage name बन गया. So like people keep their name, like singers can keep their original name. What is the need? What gives it like more clarity to rappers to keep their like stage name and things, like why it is important? See, singers का तो obviously I cannot say, but when it comes to rappers, there's this alter ego always. For example, Kamesh Chawla is who I am in real life. Okay, but when I'm on the mic, Okay. I'm somebody else. Probably I'm somebody who's representing so many other people. Like for example, voice of so many people. So उस चीज़ को एक identity देने के लिए rappers usually go for a stage name which is creative. So for me it's Rob C, and ever since I was growing up I was influenced by like rappers like Eminem, Jay-Z, 50 Cent. So Rob C just came up on its own, and वो मुझे थोड़ा लगा कि when I'm on the mic I'm Rob C, but studio में काम खत्म करके when I come back home I still have the Rob C ideology, but I'm Kamesh Chawla. So it's like an alter ego basically. Sir, तो अगर हम बात करें underground music, what is underground music? See, to sum it up, underground music basically means a voice of the artists who are not into commercial music. और ये एक parallel league है जो हर एक entertainment के उसमें exist करती है. अगर आप movies भी देख लो तो एक तरफ commercial movies चलती हैं, एक तरफ थोड़ी hardcore movies और TV series चलती हैं, जैसे Sacred Games हो गया या अनुराग कश्यप की कोई movie हो गई. तो basically यही एक difference है commercial और underground में. Commercial music आपको वो सब चीज़ें दिखाता है जो that you want to listen to. Underground will show you what you need to listen to. जो आपके आसपास हो रहा है वो आपको वो बताएगा, या उसमें रैपर्स अपना वर्ड प्ले को फ्लॉन्ट करेंगे या फिर वो अपने बारे में कुछ आपको बताएंगे. वो बेसिकली आपको सब वो वाला मटेरियल दिखाएंगे जो आपको जानना चाहिए. कमर्शियल म्यूजिक आपको वो दिखाएगा कि चलो मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मेरे को ये म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन टू. आई एम गोइंग आउट ऑन अ सैटरडे नाइट, तो मेरे को ये गाना सुनना ही सुनना. अंडरग्राउंड में मैं ये नहीं बोलूँगा कि वैसे गाने नहीं बनते हैं. अंडरग्राउंड इज़ मोस्टली टुवर्ड्स द रियल साइड. लाइक अगर आप बाहर का म्यूजिक भी देखो, जो अंडरग्राउंड म्यूजिक बाहर चलता था, blacks used to talk about oppression, they used to talk about thug life, they used to talk about, they still talk about, rappers like YG and rappers like, so many other rappers like Kendrick Lamar, जो अभी भी अपने rights के बारे में बात करते हैं. That does not mean that, they can't make commercial music. It's just that वो आपको वो चीज़ सुना रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए. अगर मैं वो एक चीज़ यहाँ पर बैठ के सुनता हूँ तो that's what makes me realize कि भाई मेरे देश में ये issues हैं, उनके देश में ये issues हैं. वो मुझे कमर्शियल म्यूजिक नहीं बताएगा, वो मुझे अंडरग्राउंड बताएगा. सो आई एम देयर लॉयल लिसनर, एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारे लॉयल लिसनर्स हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक कमर्शियल एंड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड इज बेसिकली अ वॉइस ऑफ आर्टिस्ट्स हु हैव देयर ओन पैरेलल लीग. So like आप लोग restricted रख रहे हो उसको अंडरग्राउंड के लिए, या you won't convert to like commercial? You want to या you won't? नहीं, हमने कमर्शियल गाने भी बनाए हुए हैं. लाइक अभी कुछ गाने हमारे रिलीज होंगे, तो मेरा ये मानना है कि दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड चलना चाहिए. कमर्शियल म्यूज़िक तो आपको बनाना ही चाहिए और आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है. ठीक है. सो हम कमर्शियल गाने भी बना रहे हैं. कुछ हमारे कमर्शियल गाने आए भी हैं, कुछ ऐसे हमारे कमर्शियल गाने थे जो हमने अंडरग्राउंड लेवल पे रिलीज़ कर दिए. सो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड देन वी रियलाइज्ड कि भाई ये कमर्शियल गाना था जो हमने ऐसे ही रिलीज़ कर दिया. सो ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अंडरग्राउंड म्यूज़िक को साथ साथ चलाएं, बिकॉज उसी चीज़ ने हमें बनाया है, उसी चीज़ से हम इन द फर्स्ट प्लेस अट्रैक्ट हुए हैं. लाइक अगर मैं बाहर के रैपर्स की भी बात करूं, अगर Jay-Z कोई एल्बम निकालता है 15 गानों की, 15 में से उसके 4 कमर्शियल गाने होते हैं, बाकी गाने उसके अपने बारे में होते हैं.
अगर वो 4 साल बाद एल्बम निकाल रहा है तो उस 4 साल में उसके साथ क्या हुआ है, हाउ हैज़ ही चेंज्ड एज अ पर्सन, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेके चेंज हुआ है, या उसने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ की है जो वो रिग्रेट करता है, ही वांट्स टू एडमिट इट. तो वो सब चीज़ें you can obviously just communicate it to your listeners, और वो आपके सिर से एक टेंशन खत्म हो जाती है कि यार मैं ये नहीं बोल पाया. So that is like a big luxury. अगर अंडरग्राउंड म्यूजिक में देखा जाए एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स कम है या आती भी हैं तो दे डो लाइक उनका इतना नाम नहीं, लोग जान नहीं पाते उनको इतना, या कहीं छोड़ के चले जाते हैं. तो आपके हिसाब से इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है? सिंगर्स तो हमारे पास बहुत हैं गर्ल्स. एग्जैक्टली, बट व्हाई नॉट रैपर्स? व्हाई नॉट रैपर्स? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी भी रैप हमारे देश में काफ़ी नया है. लाइक अगर आप उसका एवोल्यूशन देखो तो अभी 10-12 साल पुराना ही जॉनर है. तो अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं. अभी तो ये आप लगा लो पहली इंस्टॉलमेंट है रैपर्स की. जैसे अगर आप वेस्ट की बात करो तो 70s में हिप हॉप शुरू हुआ, बट एक्चुअली वो अगर कमर्शियल हुआ है तो वो मिड 90s में, लेट 90s में स्नूप डॉग, डॉक्टर ड्रे, इन सब लोगों के आने के बाद, या एमिनेम के आने के बाद जो तगड़े वाला कमर्शियल हुआ है, मतलब पूरी दुनिया में पता कि ये रैपर है, ये ऐसे कपड़े डालता है. उससे पहले वहाँ पर भी अंडरग्राउंड फेस चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो यहाँ पर अभी पहली इंस्टॉलमेंट है, उसमें वी हैव बीन ब्लेस्ड विद हार्डकोर. हार्डकोर एक बहुत बड़ा नाम था बैक इन द डे, एंड हमारे पास कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी हैं. बट अगर आप ये पूछते हो कि लड़कियां कम क्यों हैं, तो आई वुड से कि एक तो सबसे बड़ा बैरियर है जो मैंने आज तक अपना रिसर्च किया है कि थोड़ा लड़कियों के लिए बैरियर हो जाता है उनकी फैमिली. लड़के फिर भी थोड़ा, हमारे देश का आपको कल्चर पता है, लड़के थोड़े आउटलॉ होते हैं कि नहीं करना है तो करना है जी, जिद पे आ जाता है कि नहीं करना था करना है. लड़कियों का थोड़ा फैमिली प्रेशर आ जाता है, एंड देन पेरेंट्स बोलते हैं शादी कर लो. सो कुछ निंदा नहीं कर रहा मैं, आपको सिर्फ कल्चर बता रहा हूँ कि कल्चर ऐसा है कि 24-25 साल की उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए. 26-27 साल की उम्र तक शी शुड बी प्लानिंग अ फैमिली. तो वो कहीं ना कहीं वो एक ड्रीम लड़कियों का रह जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा मुझे लगता है. बट मैं ये भी होप करता हूँ कि जो आने वाला हमारा टाइम है उसमें ये चीज़ चेंज होगी, एंड डेफिनेटली चेंज होगी. अगर मैं, चलो लड़कियों की तो अलग बात है, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी को भी देखें तो सिंगिंग के लिए तो मना करते ही हैं, रैपिंग इज समथिंग न्यू. सो आपकी लाइफ में लाइक डिड यू मैनेज, आपने मैनेज करा अपनी फैमिली को, अगर या वो सपोर्टिव थे या नहीं थे, लाइक आपको भी एज अ बॉय फेस करना पड़ा ये प्रॉब्लम, लाइक सिंगिंग ऑल्दो दे नो आप पेरेंट्स, अगर देखा जाए तो रैपिंग इज स्टिल न्यू, सो डिड दे सपोर्टेड यू? सी ऑफ कोर्स, अगर आप हमारे इंडियन सेटअप की बात करो तो लाइक आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. तो उसमें ये होता था कि शुरुआत में जब मैं रैप करता था तो घर वाले बोलते थे कि ठीक है, हॉबी है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ क्रिएटिव कर रहा है. एक आधा गाना इधर उधर चल जाता था तो दे यूज्ड टू बी हैप्पी. और कई बार ऐसा हुआ है कि वो मार्केट से निकल रहे हैं, हमारा गाना चल रहा है, कोई लड़का बजा रहा है या कोई लड़की बजा रही है, तो खुश होते थे. बट हाँ, एक पॉइंट पे वो कहते थे कि मतलब कि तुम पैसे कमा रहे हो कि नहीं, या ये सिर्फ तुम्हारी हॉबी है, साइड बाय साइड तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे, कल को तुम घर कैसे चलाओगे. तो ये ऑब्स्टिकल्स मैंने भी फेस किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड अगेन अगर आप हमारे अभी सेटअप की बात करो तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है रैप में. अब आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बट एक आपको ऑडियंस बिल्ड करने में ही इतना टाइम लग जाता है. एंड सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि जितने हमारे म्यूज़िक लेबल्स हैं उनको कमर्शियल कंटेंट चाहिए. बहुत कम लेबल्स हैं जो भी अंडरग्राउंड कंटेंट बाय करने में आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे. तो यही एक रीज़न है कि सब लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर गाना रिलीज़ करते हैं, अपनी ऑडियंस बनाते हैं, और उसके बाद उनका थोड़ा काम जाके उनकी एक फाउंडेशन बन जाती है. तो ये ऑब्स्टिकल्स आई थिंक सबको फेस करने भी चाहिए. सो सर, व्हाट इज़ काला कुर्ता गैंग? सी, काला कुर्ता गैंग एक बहुत ही फन टर्म थी बैक इन द डे. जैसे अगेन जितने हम रैपर्स देखते हैं वेस्ट के, सबके अपने अपने ग्रुप थे, NWA, G Unit, D12 एंड व्हाई दिस देसी नेम काला कुर्ता गैंग? बिकॉज अपन है ही सारे देसी. Exactly. काला कलर सबका फेवरेट है. कालों के म्यूजिक को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं. तो प्लस ब्लैक इज़ द कलर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कलर माना जाता है, जो बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है.
प्लस सबसे बड़ा जो एक रीज़न है, रैपर्स खुले कपड़े डालते हैं। तो अगर आप देसी भाषा में देखो तो कुर्ता खुला होता है, ठीक है। सो कुर्ता इज एज हिप हॉप एज इट गेट्स। आपने भी स्कूल में स्टार्ट किया था और बच्चे भी यार रैपर्स को देख के यूँ जाते हैं फैसिनेट कि यार रैपर बनना है। सो इसके पीछे देयर इज अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। सो वो स्ट्रगल एंड फैक्ट मतलब कितना क्या है यार पीछे उसके टू गेट टू दैट पॉइंट। सी अगर आप स्ट्रगल की बात करो तो राइट फ्रॉम योर होम, मतलब आपके पेरेंट्स को पहले प्रॉब्ली हो सकता है समझना है कि रैप क्या है, फिर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, फिर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करानी है। अच्छा अगर आपका ऑडियो अच्छा बना है, आपका वीडियो बनाने का मन है, तो आपको एक वीडियो भी बनानी है। तो यू हैव टू सॉर्ट ऑल दीज थिंग्स आउट। बट फर्स्टली जो सबसे एक बेसिक चीज़ है, यू हैव टू लिसन टू हिप हॉप फर्स्ट। अभी आजकल क्या होता है, अगर जैसे अभी गली गैंग, गली म्यूजिक, ये सब बहुत चल रहा है, तो पीपल थिंक यू नो कि वही एक चीज़ है हिप हॉप की। वो भी है, बट देन अगर आप हिप हॉप एज अ होल सुनो, हर एक एरिया की अपनी साउंड है। इंडिया में भी है, पंजाब की अपनी अलग है, बॉम्बे की अपनी अलग है, दिल्ली वालों की अपनी अलग स्लैंग है, राजस्थान में अलग है, ठीक है, गुजरात में अलग है। रैपर्स ऑल ओवर द प्लेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू हिप हॉप, नॉट जस्ट देसी हिप हॉप बट ग्लोबल हिप हॉप। आपको अपना स्टडी करना चाहिए कि कौन सा रैपर क्या बात बोल रहा है और वो बात क्यों बोल रहा है। तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या बोलना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे पोर्ट्रे करना है, या आपको अपनी लाइफ को पोर्ट्रे करना भी है कि नहीं करना, या आपको सिर्फ कमर्शियल गाने बनाने हैं, या आपको सिर्फ कैची गाने बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको मूवी बनानी है तो आपको मूवीज़ देखनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर आपको हिप हॉप करना है तो आपको हिप हॉप सुनना चाहिए, और आपको वेरियस काइंड ऑफ मतलब जो भी उसकी हिस्ट्री रही है, यू ट्रीट इट लाइक योर सब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि करके आना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या एरा था पहले, क्या एरा अब है, आने वाले टाइम में कैसे चेंज हो सकता है। तो एक आपकी लाइकिंग हो जाएगी जब आप वो इतने सारे गाने सुन लोगे ना कि यार ये मेरे को सही लग रहा है, यू नो ये डायमेंशन अच्छी है, ये चीज़ सही है, ये आइडिया अच्छा है, ये बात इसने सही बोली है। तो आपको बीट पकड़ना आसान हो जाएगा, आपको लिखना आसान हो जाएगा। मोस्टली रैपर्स हिप हॉप सुनते ही नहीं है। नहीं, अगर आप भी लाइक आपने स्कूल से स्टार्ट किया था, तो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्या पहले परसेप्शंस थे और अब जाके आपको लगता है कि नहीं यार वो मैं गलत सोचता था, अब ये रियलिटी है, या क्या चेंजेस देखे आपने विद टाइम? वेरी नाइस क्वेश्चन। बैक इन द डे हमारे जितने भी गाने आते थे, कुछ गानों में बड़ी वॉनबी बातें हैं कि I have this sort of a Glock, I run the streets, you know, ऐसे करके। So when you grow up, तो आपको पता चलता है कि यार वो चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने किसी और रैपर को बोलते हुए सुनी थी, बट वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो एक्चुअली कर रहा है, मैंने इसलिए बोल दी कि मेरे को कूल लगी। So when you grow up, you realize कि भाई मेरी लाइफ ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरी स्टोरी ये है, या मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो तुम लोग ये सुनो और मेरे को बताओ कि कैन यू रिलेट टू इट, है ना। आपके अभी पास्ट फ्यू वीडियोस बहुत ज़्यादा हाइप पे आई है, लाइक बादशाह हैज शेयर इट, आस्था गिल ने करी है, एंड लाइक पीपल आर शेयरिंग इट। सो लाइक हाउ लाइक डू यू फील गुड, लाइक यस नाउ पीपल लाइक बिग पीपल आर सपोर्टिंग यू नाउ? Exactly, it feels very good when commercial artists, जो established artists हैं, जिनको कोई ज़रूरत नहीं आपके गाने शेयर करने की, वो भी आपका गाना शेयर करते हैं। Because see, it all comes down to the fact कि मतलब वो relate कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। At the end of the day, they are also human beings, they are also artists. अब अगर उन्हें वो कंटेंट अच्छा लगा है, उन्होंने वो चीज़ शेयर की है, obviously आप ये सोचो कि like मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो ब्रॉड हो गई है। एंड शाउट आउट टू ऑल द आर्टिस्ट्स जिन्होंने गाना शेयर किया है, बादशाह, आस्था गिल, इक्का, मैंच पाजी, एंड यू नो so many other artists जिन्होंने motivation, like yes, like people are appreciating it. Exactly, because these guys are veterans. ठीक है, हम इंडस्ट्री में फेयरली अभी नए हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, इनकी अलग स्टोरी है, फेमस होने से पहले से ये भी म्यूजिक कर रहे हैं, तो they have been in the industry for 15-20 years. Like Manch Paji has been around for 20 years, probably more. तो जब इन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, जब ये लोग हमारे गाने शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि यार वी शुड मेक मोर कंटेंट। मतलब कि कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो हम ठीक कर रहे हैं। हाँ जी रॉबसी, तो उड़ती खबर आई है कि आपका कोलैबोरेशन हो रहा है डीजे शैडो के साथ। सो ये क्या खबर सच है, क्या है? प्लीज टेल मी अबाउट इट। नहीं, इट्स टोटली राइट। ये गाना बहुत जल्दी आने वाला है, एंड वी इवन शॉट अ म्यूजिक वीडियो। तो वीडियो इज डन बाय प्रवीण भट्ट,
Paji, and the song is produced by DJ Shadow, and it features an up-and-coming singer from Delhi. His name is Udit Sehgal. तो बहुत अच्छा गाना बना है, कमर्शियल गाना है, प्रॉपर उसकी वीडियो है, लाइक जैसे हम अंडरग्राउंड वीडियोस अपनी बनाते हैं, उसको हम थोड़ी रगेड सी फील देते हैं कि ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं दिखाना और ये सब जो है वही दिखाना है. वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इट हैज़ लाइक बिग कार्स, बिग लोकेशंस. सो रॉप्सी, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक अभी पास्ट फ्यू जितने भी आपकी वीडियोस आई हैं वो बड़े बड़े स्टार्स ने शेयर करी हैं, सो हाउ डज इट फील? सो बेसिकली अभी हमारा काफ़ी गानों पे काम चल रहा है. अभी मेरा नेक्स्ट सिंगल आ रहा है, इट्स कॉल्ड हसल जारी. ये एक जलंधर बेस्ड आर्टिस्ट है, ब्रूटस, उसके साथ है. उसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ. एंड अभी बिल्कुल न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे मैंने गाना ड्रॉप किया, इट्स कॉल्ड लकी यू. तो इट्स लाइक काफ़ी कुछ अभी प्लान हमने किया हुआ है. एंड गाने बनाना तो खैर मुश्किल काम है ही, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है उसको रिलीज़ करना. तो अभी काफ़ी सारे गाने रेडी हैं, काफ़ी सारे गाने धीरे धीरे रिलीज़ होंगे. एंड बाकी यू शुड वॉच आउट फॉर माई एल्बम. इट्स कॉल्ड अनडिस्प्यूटेड एज ऑफ नाउ. कोई मैसेज अपने लिसनर्स के लिए प्लीज़? बेसिकली मैं सब लिसनर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आप सपोर्ट करते आए हो, प्यार दिखाते आए हो, वैसे ही आप प्यार करते रहो, गाने शेयर करते रहो. जिन लोगों को गानों के बारे में नहीं पता उनको गानों के बारे में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, बिकॉज 2019 इज़ ऑल अबाउट वर्क. और बहुत सारे गाने अभी हम बना रहे हैं, बहुत सारे गाने अभी रिलीज़ होने वाले हैं. 1-2 गाने तो ऑलमोस्ट मतलब अभी बस रिलीज़ होने वाले हैं. एक गाना न्यू ईयर पे आ चुका है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट जो भी हम रिलीज़ करने वाले हैं एज रॉप्सी एंड एज KKG and as part of Music One also. So keep liking, keep sharing, keep supporting and keep coming back at us with your constructive criticism because it means a lot. उससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ हम फॉल्टर कर रहे हैं वहाँ हम क्यों फॉल्टर कर रहे हैं. So keep loving and we love you back.